Good morning, class 10th. This is your fourth chapter, carbon and its compound. And today, in today's class, we are going to start our next topic, that is carbon compounds on the basis of structure. So basically, they have three type of structures. First is straight, second one is branched, and third one is cyclic. So straight, or we can call it unbranched as well. So straight chain, in this carbon atoms combine together with the a straight chain. For example, here we have C3H8 element, so molecule or compound. So this here we have three carbon atoms here, so 1 2 and 3 carbon atoms, and we have to make sure that each of the carbon is combined with 4 bonds. So here one is this, second one is this, third this, and fourth this. So this carbon is completing its 4 bonds. So this is stable. Now moving next to this one, 1 2 3 and 4. So this one is also stable, and third one is this, so 1 2 3 and 4. So this one is also stable. So let's count it on 3 carbons and 1 2 3 4 5 6 7, this 8. सो हाइड्रोजन 8. सो यहाँ पर क्या हुआ है, सी ये जो कार्बन है वो बिल्कुल स्ट्रेट चेन में चल रहे हैं. बाकी जो हाइड्रोजन है वो तो आसपास उसके लगे हुए हैं, जॉइन हैं, बट जो कार्बन की चेन है वो बिल्कुल स्ट्रेट फॉर्म होती है इसमें. नेक्स्ट इज ब्रांच्ड. ब्रांच्ड में क्या होता है, ब्रांच चेन में कि जो कार्बन है वो ही एक ब्रांच के टाइप में निकले हुए रहते हैं. फॉर एग्जाम्पल सी हेयर, यहाँ पर जो ये कार्बन है ये इसके साथ यहाँ पर एज अ ब्रांच जुड़ा हुआ है, एंड यहाँ पर दीज 2 कार्बन्स आर जॉइंट विद दिस कार्बन एटम लाइक अ ब्रांच. सो ये जो फिनोमिना होता है यहाँ पर ये इस तरीके से होता है. एंड नाउ द नेक्स्ट थिंग इज आइसोमेरिज्म ऑफ C5H12, दैट इज़ पेंटेन. जब कार्बन मॉलिक्यूल्स जो 5 हो जाते हैं, हमने लास्ट क्लास में ये चीज़ पढ़ी थी कि जब 5 कार्बन एटम्स होते हैं वी कॉल इट पेंटेन, राइट. सो आइसोमेरिज्म क्या फिनोमिना होता है, सबसे पहले तो कि जब एक कंपाउंड के जो डिफरेंट केमिकल फॉर्मूला होते हैं, लेकिन उनका जो केमिकल फॉर्मूला होता है वो सेम होता है, लेकिन उनका केमिकल स्ट्रक्चर जो है वो डिफरेंट होता है. सो दिस फिनोमिना इज़ नोन एज आइसोमेरिज्म. Isomerism is the phenomena in which more than one compound have the same chemical formula but different chemical structure. उनका जो chemical structure है वो different होता है compounds का, लेकिन उनका chemical formula almost same ही होता है. So see here we have N-pentane. Pentane means 5 carbons. So 1 2 3 4 5, and the hydrogens are attached to each of the carbon. So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 and 12. C5H12, this is C5H12. moving next to isopentane. So isopentane में क्या होता है, ये यहाँ पर स्ट्रेट में था, यहाँ पर ये स्ट्रेट चेन में था, दैट इज़ अनब्रांच्ड, और यहाँ पर अब ये ब्रांच्ड चेन में चेंज हो जाएगा. सो C 1 2 3 4 कार्बन्स आर हेयर एंड 1 इज अटैच्ड हेयर एज अ ब्रांच. सो वी विल ऐड द हाइड्रोजन्स हेयर ओवर टू मेक इट like this. So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. See, इसका भी केमिकल फॉर्मूला बिल्कुल यही है, C5H12. You can count it on. And moving next to our neopentane. Neopentane में भी सेम 5 कार्बन एटम्स होते हैं, एंड सिमिलर टू दीज 12 हाइड्रोजन एटम्स होते हैं. यानी कि इनका जो केमिकल फॉर्मूला है वो बिल्कुल सेम है, बट द स्ट्रक्चर इज़ टोटली डिफरेंट फ्रॉम दीज 2. सो सी यहाँ पर 3 कार्बन्स ऐसे चेन में अटैच्ड हैं और 2 कार्बन्स एज अ ब्रांच्ड अटैच हैं. सो लेट्स काउंट इट ऑन
Firstly, carbon 1, 2, 3, 4, 5, 5 carbons C5, and hydrogen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, and 12. Hydrogen are 12. So, as you can see in this one, their chemical formula is same, but they all are different in their structure. So this phenomena is known as isomerism. These three have same molecular formula but different structures are called structural isomers. इनको हम structural isomers भी बोलते हैं and phenomena is structural isomerism और इस phenomena को हम structural isomerism बोलते हैं. Now the third one is cyclic. First one was unbranched or straight, second one was branched, and third one is this cyclic. So cyclic कैसा होता है कि एक साइकिल की फॉर्म में मूव करने वाला, just like this. So यहाँ पर we have an example of C6H12. So C6, it means it has 6 carbon molecules. These molecules or these atoms can be in single bond or in double bond as well. So जहाँ पर हमारा डबल बॉन्ड आ जाएगा वहाँ पर हम उसका जो एक हाइड्रोजन है वो कम कर देंगे. फॉर एग्जाम्पल सी हेयर, यहाँ पर सबसे पहले इसके पास सिर्फ एक सिंगल बॉन्ड यहाँ पर बना रहा था, एक सिंगल बॉन्ड यहाँ बना रहा था ये, लेकिन हमने जब इसको सेकंड में यहाँ पर चेंज किया तो इसने एक और बॉन्ड ऐड कर लिया. सो यहाँ पर इसके ये वाला कार्बन सिर्फ 2 बॉन्ड्स बना रहा था और यहाँ पर यही कार्बन 1, 2 and 3 बॉन्ड्स बना रहा है. सो हमें सिर्फ एक एक्स्ट्रा एक हाइड्रोजन ऐड करने की ज़रूरत है और यहाँ पर हमें 2 हाइड्रोजन ऐड करने की ज़रूरत है. सो दिस इज़ द बेसिक डिफरेंस. दिस इज़ साइक्लिक सैचुरेटेड एंड दिस इज़ साइक्लिक अनसैचुरेटेड. सो here I have shown you that how it will combine with the hydrogen atoms. So here C with 2 hydrogen atoms and one is this and one is this. So it is completing its 4 valence electrons like 1, 2, 3, 4. It is stable now and 1, 2, 3, 4. It is stable now 1, 2, 3, 4. इसी तरीके से ये सारे के सारे स्टेबल होते जाएंगे जब यहाँ पर ये 2-2, ये क्योंकि सिंगल बॉन्ड में है तो ये 2-2 अपने जो बॉन्ड्स और एक्स्ट्रा बनाएंगे. एंड इन दिस वन C6H6 यहाँ पर बिकॉज ये डबल बॉन्ड भी बना रहे हैं सो दैट्स वाई हाइड्रोजन का काउंट यहाँ पर कम हो जाएगा. सो सी हेयर 1, 2, 3 एंड इट नीड 1 मोर बॉन्ड. सो इट इज़ हेयर. नाउ we will add 1 hydrogen atom here. So now it is stable. Similarly like this 1, 2, 3 and 4. Now it is stable. Similarly with this one 1, 2, 3 and 4 stable, and it will goes on like this, will all over these 3 carbons as well. So this is cyclic unsaturated and C6H6 is benzene. Next is functional group. In hydrocarbon chain, one or more hydrogen atom is replaced by other atoms in accordance with their valencies. जो वो हाइड्रोकार्बन्स जो होते हैं, हाइड्रोकार्बन्स की जो चेन होती है उनमें जो हाइड्रोजन एटम होते हैं वो एक दूसरे को रिप्लेस करते रहते हैं अकॉर्डेंस विद द वैलेंसी. यानी कि जिसकी वैलेंसी जहाँ पर जिसकी ज़रूरत पड़ेगी वो वहाँ पर उसके साथ वैलेंसी उसकी कंप्लीट करने चला जाएगा. एंड दीज आर नोन एज हेट्रो एटम्स. दीज हेट्रो एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम विच मेक कार्बन कंपाउंड रिएक्टिव. और यही हेट्रो एटम या फिर उनका कोई भी ग्रुप जो कि कार्बन एटम को, कार्बन कंपाउंड को रिएक्टिव बनाते हैं, वही उसकी प्रॉपर्टीज़ भी डिसाइड करते हैं. एंड इसी वजह से उनको हमने एक अलग अलग ग्रुप में शामिल किया है, दैट आर नोन एज फंक्शनल ग्रुप्स. A functional group is a specific group of atom or bond within a compound that is responsible for the characteristic chemical reaction of that compound. यानी कि वो जो compound है उस group में आके वो सारे के सारे similar characteristics show करते हैं. That's why we have put them in a group and we have named them as functional groups. So here we have some of the functional groups.
functional groups, and here in the right hand side the formula of those functional groups. So halo contains H only, chloro contain Cl, bromo contain Br, alcohol contain OH, एल्डिहाइड का जो फॉर्मूला होता है एट लास्ट वो CHO या फिर इस टाइप का वो बॉन्ड बनाता है, बिकॉज जो हमारा ऑक्सीजन होता है वो हमेशा डबल बॉन्ड बनाता है एंड कार्बन को 4 बॉन्ड कंप्लीट करने होते हैं, ऑक्सीजन को डबल बॉन्ड कंप्लीट करना होता है। एंड सिमिलरली जो हाइड्रोजन होता है उसके पास सिर्फ एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, सो उसको 1 इलेक्ट्रॉन जो उसको 1 बॉन्ड ही कंप्लीट करना होता है। सो दिस इज़ फॉर एल्डिहाइड। नेक्स्ट इज़ कीटोन। कीटोन में यहाँ पर एज वी ऑल नो कि जो ऑक्सीजन है उसको डबल बॉन्ड कंप्लीट करना होता है। सो कार्बन इज़ हेयर, सो 1 2 3 and 4 फॉर कार्बन एंड 2 फॉर ऑक्सीजन। नाउ इट इज़ स्टेबल। Carboxylic acid, that is COOH or CO2H, or we can label it like this: one oxygen here with this carbon and one with carbon and hydrogen. So these are the formula of these functional groups. This is it for today's class. Thank you.